Yes. And in Group B, we have Porto, Atletico, Leverkusen, and Club Brugge. In Group C, we have Bayern, the group of death, Bayern, Barcelona, Inter, Leipzig. And in Group D, we have Frankfurt, Tottenham, Sporting, Marseille. And in Group E, we have Milan, Chelsea, Salzburg, Dinamo Zagreb. Group F, we have one of the easiest groups, Real Madrid, Leipzig, Shakhtar, and Celtic. Group G consists of Manchester City, Sevilla, Dortmund, Copenhagen. Um, Sorry, but if I'm not pronouncing the names properly of the other teams. Group H, Paris, Juventus, and Benfica and Maccabi Haifa. Hmm. तो भाई सबसे ज्यादा जो Next मुश्किल ग्रुप मेरे लिए तो ग्रुप सी इज द group C. टफेस्ट ग्रुप. Hmm. एंड आफ्टर दैट मैं जिस ग्रुप को रेट करूंगा ना सबसे टफेस्ट, जो कंटेंशन में आते हैं वो ग्रुप ए एंड देन ग्रुप ई आता है. क्योंकि चेल्सी का भी आई थिंक थोड़ा सा तो सेल्सबर्ग से एक चीज है कि सेल्सबर्ग और थोड़ा सा मसला कर सकती है, सेल्सबर्ग क्रिएट कर सकती है. बट Definitely. डेफिनेटली निकाल लेंगे चेल्सी वाले, मिलान को भी हरा देंगे, वो तो चीज लगी रही है मुझे. तो यही चीज है कि सबसे पहले तो कंटेंशन में इट्स ग्रुप सी, देन ग्रुप ए, देन ग्रुप ई फॉर मी. ये इधर मैचेस दिखा चुका है, बट नवंबर तक मैचेस खत्म. हाँ, देख ना इधर, क्योंकि वर्ल्ड कप है ना. हाँ हाँ, नवंबर तक ग्रुप मैचेस खत्म. ये तो मुश्किल होगा हर हर टीम के लिए फिर. बिकॉज बड़ी टीमों यार के लिए भी मुश्किल होगा. बिकॉज कंटिन्यूसली मैचेस रहेंगे ना. क्योंकि और बिकॉज लीग के भी तो मैचेस कंटिन्यूअसली आ रहे हैं. तकरीबन तीन अभी तीन चार चार दिन बाद के फर्क से ही वो मैचेस भी हुए हैं. नेक्स्ट वीक से ना. अभी बीच में एक और चीज़ है ना, हम्म. नेशंस लीग का ड्रॉ. नेशंस लीग के 2 मैचेस बाकी है. हाँ, व्हाट हेक्टिक शेड्यूल है फिर नेक्स्ट मंथ वो से. वो आएगा. आई गेस कब से आएगा वो, सितंबर के 18 सितंबर से आई गेस 2-3 अक्टूबर तक की कोई इनकी छुट्टी है, वो उसकी है नेशन फ्रेंडलीज, ये नेशंस कप की है आई गेस. इधर दिया है ना, फिक्सचर्स में दिया, तो उससे पहले एक हफ्ता वही वो वीक में ही रहता है. 4 अक्टूबर का दिया है. 4th and 5th अक्टूबर. सो वो उससे पहले वाला वही वीक में आएगा. लाइक फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त अक्टूबर में. 2 अक्टूबर को मैच है ना, मैन सिटी वर्सेस यूनाइटेड. ओके. हम्म. और अरे, इतना हम लोग का भी ग्रुप इतना इजी नहीं लग रहा है. इजी है हम लोग के लिए, बट इट्स नॉट दैट इजी. सविया इज नॉट इजी टीम टू बीट. मुश्किल है. एंड इवन डॉटमन. चेल्सी आई थिंक कैन हैंडल मिलान, बट मिलान है, स्क्वाडेटो जीती है, बट लेट्स सी. व्हाट डू यू हैव टू से, श्री भाई? यार यूरोपा का भी तो ड्रॉ हुआ है, यूरोपा का भी तो ड्रॉ हुआ है. I think वो हमें तो पता नहीं sadly कौन सी. easy group C है वो तो. I think PSV Sociedad should be beatable अगर आर्सेनल यूनाइटेड के स्टैंडर्ड से देखा जाए. I think AC मिलान की वही बात है. I think people will see the difference between a Premier League team who finishes third and Serie A champions. I think we will be too good for Milan as much as हम्म. वो स्कूडेटो जीतते. I think last year Juventus ने हमको एक मैच हराया था and they were the champions, I believe. I think runner up at that time, and we smashed them at Stamford Bridge, absolutely destroyed them. And I think Inter Milan also have not been able to go past group stage or for I don't know how many years. Last year they got past it, but they lost to Liverpool. That was the first time they got past it. I think Bilal Bhai will know well. Inter have been drawn a lot of times with Real Madrid, Inter, Real, Shakhtar, and surprisingly, Shakhtar has always finished above them. I think that is a big, big damning thing on Serie A. The Serie A teams, they never ever do well in Europe, and I think Milan will get a big taste. It's different winning Scudetto and it's different beating a Premier League team in a Champions League game. I think San Siro will be a difficult match because the crowd will be up for it. But I think at Stamford Bridge, I don't think they're going to get us trouble us. And I think AC Milan might just do better against Chelsea. The problem for AC Milan will be how they do against Dynamo Zagreb, how they do versus Red Bull Salzburg. I think Serie A teams for some reason are not up for it, and I think Chelsea do better in these games. I'm more afraid of Chelsea playing Dynamo Zagreb than I'm Chelsea playing Milan and Salzburg. I think Salzburg plays some very good football, and I think that will make Chelsea enjoy playing them and will nicely score goals against them as well. I think Milan could be tough test, but
I can't see Milan playing a bit defensive football, and I think that can play in Chelsea's hand. I think Dynamo Zagreb is a team where I'm more concerned of, because I know that my team is not going to finish their chances. So I think it's relatively a very easy group where there's no excuse to finish nothing less than first for me. Definitely, देखो, आई definitely. एग्री विद श्रेय भाई, आई डेफिनेटली एग्री विद श्रेय भाई। इसमें मैं ऐड भी करना चाहूंगा, क्योंकि पता है क्यों? बड़ी टीम्स जो होती हैं छोटी टीम से स्ट्रगल काफी बार कर जाती हैं। द रीजन, मेन रीजन यही होता है कि जब जब छोटी टीम जब मौका नहीं देती ना स्कोर करने का, एंड मोस्टली इंस्टेंसेस पे यही होता है जब छोटी टीम्स आपको चांसेस क्रिएट करने नहीं देती हैं, और आपके जब चांसेस क्रिएट हो रहे होते हैं और आप फिनिश नहीं कर रहे होते, जैसा चेल्सी का हमें पता है कि चेल्सी डोंट हैव दैट नंबर 9 जो कि उनको चांसेस फिनिश करके देगा। और पूरी एज अ टीम खेलते हैं लोग, एज अ यूनिट खेलते हैं, तो डेफिनेटली चांसेस मिस होते हैं, हमें पता है। तो चेल्सी माइट स्ट्रगल अगेंस्ट डिनामो ज़ाग्रेब, और इस वजह से, क्योंकि जब चांसेस आप क्रिएट नहीं करोगे अल्टीमेटली आपके ऊपर प्रेशर आएगा, और सामने वाली टीम उस प्रेशर को देखेगी कि भाई इनहेल अपने अंदर वो कर लेगी, वो पूरा बैठ जाएंगे। जब उनको चांस मिलेगा वो काउंटर पे अटैक मारेंगे, वो कुछ ना कुछ करेंगे, तो उससे यू विल बी वाइड ओपन और उनके चांसेस बन जाते हैं ज्यादा। तो डेफिनेटली ये सबसे बड़ा एक रीजन होता है इस चीज का। डेफिनेटली इस ग्रुप में आई थिंक ग्रुप ई जो यूनाइटेड का ग्रुप है वो ग्रुप ऑफ डेथ बोल सकते हाँ हैं। यही है। बड़ा टफ ग्रुप ग्रुप है, ऑफ डेथ ही है, क्योंकि बट क्योंकि पता है, यूनाइटेड देखो मैं बताता हूँ। के स्टैंडर्ड हम्म से ये जीत सकते हैं, बट आई डोंट नो। इवन लाज़ियो वाला ग्रुप इज टफ है। लाज़ियो फाइनोर्ड मिली समथिंग, आई डोंट नो उसका नाम का है, एंड वो भी अच्छा ग्रुप है, ग्रुप एफ। या ग्रुप ई में बताऊं, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल सोसिडेड, शेरिफ एंड पता नहीं क्या नमोनिया ओमोनिया कुछ टीम है, आई डोंट नो द नेम। साइप्रस की कोई टीम है ये। पता नहीं यार, ये हमारा क्लब क्या दिखाएगा, क्या दिन दिखा रहा है हमें, कौन कौन से हमें ग्राउंड्स में जाके खेलना पड़ेगा। मैंने इनकी ग्राउंड की कैपेसिटी पढ़ी, कुछ 27,000 का इनका ग्राउंड है, और शेरिफ का 12,000 का कैपेसिटी है ग्राउंड है इनका। मैंने बोला भाई इतना तो यूनाइटेड का एक स्टैंड भर चुका होता है पूरा। अबे अरे यार, मैंने बोला इससे क्या क्या दिन इससे दिखा दिया हमारी टीम ने। इससे बेटर तो कॉन्फ्रेंस लीग के टीम्स है। इट्स ओ मी, मैंने गलत डाल दिया इसमें। नेवर माइंड, छोड़ो जाने दो। लेट्स फोकस ऑन प्रीमियर लीग। कॉन्फ्रेंस लीग की हो गई है क्या ड्रॉ? कॉन्फ्रेंस लीग हाँ की हो गई, होगी हो आई गई। गेस। नहीं, हो गई आज ही थी। हाँ, इनको छोड़ा भी प्रीमियर लीग। अरे उसमें भी अच्छे अच्छे वो थे, सॉरी उसमें भी अच्छे अच्छे थे एक्चुअली। कॉन्फ्रेंस लीग में फ्लोरेंटीना, वियारियल, वेस्ट हैम, ये सारी टीम्स है उसमें। दिख रहा है ये ब्लैक। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब्दुल्ला भाई का शायद नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है आई गेस। मेरा हो रहा नहीं, है। एक्चुअली थोड़ा डार्क लग रहा है वो। एक सेकेंड। यस, हियर्स अ पीएल फिक्सचर्स। मेरा हो रहा है आई गेस, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। यस, वन सेकेंड। हियर इट इज। पहला गेम है शो हो रहा यूनाइटेड है। साउथहैम्पटन। यूनाइटेड साउथहैम्पटन। इशू हो रहा है। हम्म ओके, नहीं नेट तो प्रॉपर है। नहीं, शो हो रहा है बट थोड़ा स्मॉल है जैसे ना। ओके ओके, हाँ ओके। फर्स्ट गेम पे जाते हैं, यूनाइटेड साउथहैम्पटन। बिलाल, स्टार्ट विथ यू। यार आई एम ऑडिबल और नॉट ऑडिबल हूं ना मैं? यस, हाँ ऑडिबल है। वीडियो अटक गई है। नहीं अभी फाइन है, वीडियो अभी अटक फाइन गई है। है? नहीं नहीं, अभी फाइन है, अभी फाइन है। सही है। कंटिन्यू। हाँ। चलो, तो आई एम डिस्कनेक्टिंग यार। एकांकुर ऑडियो पे आ क्या जाओ। मसला चल रहा वीडियो है? बंद कर, वीडियो ऑफ कर दे थोड़ी। तो चेक कर। श्रेय भाई, यू स्टार्ट विद इसका थोड़ा, तब तक आप बता दो। यूनाइटेड साउथहैम्पटन। आई थिंक अच्छी गेम है। आई थिंक दिस इज अ हार्ड गेम टू प्रेडिक्ट बिकॉज आई थिंक यूनाइटेड आर अ टीम दैट्स प्लेड वेरी वेल अगेंस्ट लिवरपूल और बहुत अच्छा खेले। आई थिंक दे थ्रैश लिवरपूल, वर ऑन द गेट गो फ्रॉम द मैच, स्टार्टिंग से इंटेंसिटी से खेले,
They played with vigor, they played with desire. So a big respect to them. I think they played some fantastic game. But the difference between I think Manchester United is like the consistency now. I think playing Liverpool and beating Liverpool is much more easier because it's the biggest game and players are up for it. But playing Southampton, a team at the bottom of the league, a team which has not bottom of the league but will be expected to be near the bottom half of the table. I think these are the games United need to be up to and take the maximum points if they dream of being in the top four. And I think these are the fixtures which are tough. And कई बार ये होता है कि इस गेम के लिए यूनाइटेड अपनी होते यहाँ पे आप काउंटर नहीं कर सकते, आपको पोजेशन रखना पड़ेगा, आपको मैच डोमिनेट करना पड़ेगा. आई थिंक यूनाइटेड की कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम है, यही पे यूनाइटेड अटकती है कि इफ दे हैव टू टेक द अटैक एंड टेन हाग हैज जस्ट नॉट बिकम अ मैनेजर, तो his style of play at the moment is going to take time to adjust. While Southampton still score a lot of goals, Kyle Walker-Peters, Armstrong, Adam Armstrong, you go towards James Ward-Prowse, there's some very tricky players up there, and I think St. Mary's Stadium United don't do well. Crowd, everyone up for it. I just can see this match entered into a draw. I cannot see United beat Southampton. न्यूज़ देखते हैं. न्यूज़ में था कि मार्शियल इज नॉट फिट फॉर दिस मैच. आई एम नॉट श्योर. एनीवेज, बिलाल तो आया नहीं. आई एम प्रेडिक्टिंग टू ऑल ड्रॉ एज यू, बट मैं थोड़ा लग रहा है यूनाइटेड मास ले जा सकती है मैच 2-1 से. बट आई डू सी साउथहैम्पटन स्कोरिंग. क्लीन शीट रखना यूनाइटेड के लिए इस टाइम तक. You can't expect them to keep a clean sheet. ये मैच पे आखिरी में आते ही इम्पोर्टेंट मैच है. चेल्सी लीड्स, व्हाट्स इट, लेस्टर. बहुत इम्पोर्टेंट मैच है. ब्राइटन लीड्स. श्री भाई. I think Brighton Leeds शायद इस वीक का द मोस्ट एंटरटेनिंग मैच हो सकता है क्योंकि दोनों टीमें बहुत अच्छी फॉर्म पे है. आई थिंक ब्राइटन ने दे हैव ऑलरेडी गॉट पॉइंट्स अगेंस्ट यूनाइटेड. They've got a draw against home to Newcastle. They have also gone away to West Ham, a very tough place, and got a victory. So Brighton right now, even after losing Cucurella, Bissouma, are doing a very, very good job. And Graham Potter has to be managing a big club soon because it's a very, very surprising thing he's managing Brighton. I think with Newcastle already getting Eddie Howe, I think top clubs looking settled right now. I think Eddie Howe has to be looked on by West Ham. If David Moyes cannot get the best out of this team, by Aston Villa, who employs Steven Gerrard, I respect him, but he's not at the level of the manager at top leagues. And I think teams like West Ham, teams like Villa, I think teams who are aspiring to be the top 8, top 9 in the Premier League, I think they must be looking at a manager like this because he is a Am I audible? Am I audible? Yes. Yeah, absolutely. Yes, absolutely. I think if Leicester sack Brendan Rodgers, which is very big possibility, I think this is a very good manager to go with. While Leeds, I think I underrated Jesse Marsh, but what a job he has done. What a job he has done. Kept them up, and right now. अच्छा, मेरी वीडियो आ रही है. मेरी sorry for interrupting. Yes. Yeah, it's audible. Is my video coming or not? हाँ, वीडियो आ रही है आपकी. सही है. You are visible. And मैं लीड्स का ही कहूँगा. I think मैं थोड़ा सरप्राइज था लीड्स की साइनिंग से because they were going for a lot of American signings, but अब लग रहा है all the signings are working. Aronson is looking very, very good so far. Along with that, you can see Tyler Adams is looking good. Now they have replaced Calvin Phillips with Adams, who look very, very good. Yes, it's one game, but he is looking good. Aronson is looking good. Harrison is in form of his life. Rodrigo, who was a bench player under Bielsa, looks revived, and it looks difficult for Bamford to get back in the team now. I don't see Bamford coming back in the team with the way they are playing. I think Leeds are looking very good side as well. And this is a match which is going to be one of the most interesting matches in the league. But I do think this is going to end in a 1-1 because it's too difficult to separate between two sides. Brighton is not easy to break down. So Leeds won't enjoy like they did against Chelsea. Second hand, this is not Chelsea. Leeds won't be so much up for it. And I think Brighton and Leeds will cancel each other out. And I think it will be an entertaining 1-1 draw. Definitely. I'll also pick a draw, but what do you say? 2-2 draw. Because Leeds concede करेगी. Bilal, first Southampton, then Brighton Leeds. साउथहैम्पटन तो भाई अपना गेम है. मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस साउथहैम्पटन, तो मैं तो चाहूंगा कि भाई हो अपनी टीम ही जीतनी चाहिए. तो आई विल बी गोइंग फॉर अ 3-1 विन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. और रोनाल्डो की होपफुली आ रही है और एक
ब्रेस आ रही है या फिर एक गोल तो आ ही रहा है रोनाल्डो का, आई होप भाई. एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि भाई एंथनी मार्शियल इज इंजर्ड, एंथनी मार्शियल विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द गेम. तो एक एक तरह से हमें एक अच्छे प्लेयर, एक इन फॉर्म प्लेयर का हमें एक वो मसला हुआ है कि अब हमें रोनाल्डो को स्टार्ट करना ही पड़ेगा, या देखते हैं क्या करता है रिटर्न है, क्या उसी लाइनअप के साथ जाते हैं तो देखते हैं. बट डेफिनेटली आई विल बी गोइंग फॉर अ 3-1 ड्रॉ, 3-1 विन, सॉरी 3-1 विन. एंड ब्राइटन वर्सेस लीड्स, तो ब्राइटन एट द मोमेंट आर लुकिंग गुड. लीड्स चेल्सी से जीत के आई है तो भाई मोराल विल बी बूस्टेड, मोराल विल बी हाई डेफिनेटली. तो आई आई एम होपिंग फॉर अ ड्रॉ. लेकिन मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ब्राइटन निकाल लेगी आगे, क्योंकि ब्राइटन के होम पर है. एंड पता है ग्राम पॉटर की क्या फिलोसफी चलती है, तो लीड्स को वो निकाल लेंगे. लीड्स गोल मारेगी, ये है 2-3 का जो होगा स्कोर लाइन होगी, वो 2-3 होगी, 2 फॉर लीड्स एंड 3 फॉर ब्राइटन. ब्राइटन कुछ भी करके निकाल लेगी आगे एक ना एक. Yes. Next game will be Wolves Newcastle. श्रेय भाई आप स्टार्ट कर लो. I think ये एक I will say a big test for Newcastle United, because I think these are the fixtures where Newcastle really struggle against as well. So I think we need to be very honest with ourselves as well, that these are the matches which will decide whether Newcastle can come in top 10, top 9 or not. It's well good enough to get 3-3 draw versus City. Well done, great day for you. Fans were up for it. But if they go and now lose to Wolves, then what's the benefit? Like, you don't get a trophy for getting a 3-3 draw against Manchester City. Like, I'm sorry, but that's not it. And it's about consistency for Newcastle if they dream to be in the top 10. I think these are the matches which are more important than impressing against City. Against City, it's about how good you are, the ability you have. But now, can you do it consistently? And I think Wolves are the worst side in the league to play, the worst team to watch, the worst team to watch playing football. I think if I have to punish someone, I'll put him in the match and watch him. Wolves now. Yes, Wolves are a good team. They can play some good football, but Wolves just cannot score a goal. Wolves cannot score a goal. They just cannot score a goal, and that's a big problem. They have Podence, Neto, who are not good in front of goal. They have good trickery in between them, but they are not good output in the final box as well. You go towards Adama Traore, and he's just about running and having a bit of oil and nothing else in that. So that's about Adama Traore as well. You go towards the middle, and the best output of scoring is Neves, and that's very disappointing. Because if your midfielder has to be your biggest scoring outlet, I think that's a massive concern. They lost to Leeds in the first game 2-1. Then Wolves drew versus the newly promoted Fulham 0-0 at home. And then they lost to Tottenham away as well. And as much as Matheus Nunes is a great signing, does it improve their goal scoring? I don't think so. Yes, it makes their midfield strong, Neves, Moutinho, Nunes, but that only decreases the goal they concede, They've also not the brought amount in of goals. गिडेश ना, गिडेश को भी लेके आए वो लोग, कंसालो गिडेश. But again, I don't think that improves the attacking big like it should be. I think they need to find a striker. I think sadly, since the head injury by David Luiz, I think Jimenez is not the player we know. I think that injury has affected him, and the Jimenez we know is not there. I think after that injury, he was out for I think 6 months to 1 year, and now Jimenez is a shadow of the player he used to be. Like his finishing is not there, his output is not there, and I believe right now he's on the bench and Havang starts above him, which is sad to see because I loved Jimenez. And sadly, if not for that injury at the hands of David Luiz, which is understandable, that was not intentional. There was just a clash of the heads which can happen. But I think if that did not happen, Jimenez would right now have been playing for a club like Chelsea United. That's it, but sadly, sometimes life takes a bad turn, and that's the case with Jimenez. And Wolves have no goal scoring player up front. That's where the problem is. Newcastle, on the other hand, are coming in momentum. Just signed Isaac. They have Callum Wilson, Alan Saint Maximin. They have got Trippier is suspended for this game, so that could be a problem. And along with that, they have got Bruno Guimaraes in the midfield, one of the most underrated midfielder in the league. They have got a great goalkeeper in Nick Pope. So I think they have got a good team. I think this match has a 0-0 or a 1-1 written all over it. I cannot see Newcastle losing, but I just cannot see Wolves concede a goal because Alan Saint Maximin will enjoy himself against City. But what he can do when he has to play five defenders on one with him, that's where the problem can come with him. And I think this match has a dull 1-1 or a 0-0 written all over it, in my humble opinion. डेफिनेटली. मेरे को इस गेम वीक में मोस्टली ड्रॉज दिख रहे हैं, कम ही रिजल्ट आए, बिकॉज ईच एंड एवरी टीम हैज लाइक
their nemesis, what you can say. Exactly. So maybe इधर nil draw predict करूंगा. Bilal, yours? Wolves versus Newcastle. यार वुल्व्स वुल्व्स वर्सेस न्यूकासल अच्छा गेम होगा. न्यूकासल में आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग एलेक्सेंडर मैक्सिमन, जो उसने तबाही मचाई थी सिटी वाले मैच में. ही वाज अनडिस्प्यूटेड भाई. उसने काइल वॉकर को बैठने नहीं दिया था भाई. मतलब उसने इतना वो कर दिया था, तो आप सोचो कि उनकी उस फ्लैंक पे वो क्या करेगा. तो डेफिनेटली मुझे ऐसा ही लग रहा है. वुल्व्स भले दे आर गुड, दे हैव रूबेन नेवेस, मैथ्यूस नूनेस को लेके आए वो लोग, कॉन्सालो गिडेश को लेके आए. ऑलमोस्ट पोर्चुगल टीम ही बन रही है भाई वो तो पूरी एक तरह से. लेकिन यही है कि आई एम गोइंग फॉर अ 2-0 विक्ट्री टू न्यूकासल इन दिस गेम, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई न्यूकासल खा जाएगी. न्यूकासल आर इन द फॉर्म भाई. मतलब अच्छा खेल रहे. देव साइंड अलेक्जेंडर इसाक, तो और भाई उनको एक ऑप्शन मिल जाएगा. लेकिन कल तो नहीं खेलेंगे वो, आई गेस कल नहीं खेलेंगे वो. तो फिर भी एक एक मोमेंटम एक टीम के अंदर होता है. 70 मिलियन का एक स्ट्राइकर आपकी टीम में आ रहा है, तो डेफिनेटली भाई वो लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो करेंगे. तो यही चीज है कि न्यू कासल विल बी द विनर्स ऑफ दिस. एंड इट्स अ न्यूज भाई. एक न्यूज मैं आप लोगों को दे दूं, यूनाइटेड से रिलेटेड है. आईएक्स हैव रिजेक्टेड अ 90 मिलियन बिड फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर एंटनी. भाई क्या चाह रहे हो? व्हाट डू वी डू? क्या 100 मिलियन दे दें उसके? अब 100 मिलियन ही देगी यूनाइटेड. पता नहीं भाई Got it. क्या हो रहा है. बट एंटनी एंटनी ने तो पूरी तरीके से बोल ही दिया ना कि आई एम विलिंग एंड आई वांट टू ज्वाइन मैनचेस्टर यूनाइटेड. तो भाई आप क्यों बीच में वो कर रहे हो? ऑल तो एरिक्स को पता है कि हमने अपने प्लेयर्स का कोटा सेल कर दिया है पूरा, एंड वी आर अप फॉर इट भाई. हम सेल ना भी करना चाहे तो हम नहीं करेंगे. बट जब उनको पता है कि यार एक प्लेयर आपके उसमें रुकना ही नहीं चाह रहा, तो वाई वाई फोर्सिंग हिम टू स्टे? वो खेलेगा ही नहीं. उस पैशन से वो आपकी टीम के लिए ही नहीं खेलेगा. 90 मिलियन की आपने बिड रिजेक्ट कर दी. इसी आप लोग खुद बताओ आप दोनों मुझे, इज ही वर्थ 90 मिलियन? 100 मिलियन देने का क्या यूनाइटेड 100 मिलियन दे दे. 70 मिलियन अभी उसके लिए दिए कैसेमीरो के लिए. 50 मिलियन कोडी गैक्पो के लिए लेके जाएंगे. चलो 15 मिलियन हमने अभी स्पेंड कर दिए उसके उसमें टाइल मलासिया में. एक राइट बैक भी ऑप्शन चाहिए हमें, और उसके अलावा एक फॉरवर्ड भी चाहिए, क्योंकि वी डोंट नो रोनाल्डो विल स्टे और नॉट. क्योंकि अभी तक जो न्यूज आ रही है वो 99% स्पोर्टिंग लिस्बन से रोनाल्डो का अग्रीमेंट हो चुका है, जहां तक अभी तक न्यूज आ रही है. आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे पता नहीं है वैसे. लेकिन यही है कि अब तो आगे भी हमें साइनिंग करनी पड़ेगी. तो क्या हम लोग 220 मिलियन सिर्फ 3 प्लेयर्स के ऊपर हम निकालेंगे? यही Definitely. चीज है. um नहीं, वो तो वर्दी 90 मिलियन तो नहीं है, बट आईएक्स आई थिंक कॉज ऑफ द चैंपियंस लीग ड्रॉ, उसकी वजह से लोग माने नहीं, बिकॉज दे गॉट लिवरपूल. और कौन यार था? वो फैक्टर नहीं हो सकता ना. जो वो फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं हम. लेकिन पता है क्या मसला है? हम्म. मसला सबसे बड़ा यही है कि उन्होंने अपना कोटा सेल कर दिया है. उन्होंने अपने 5 मेन टीम प्लेयर्स अपने उन्होंने देखो, ग्रेवेनबर्च को उन्होंने जाने दिया, मैजरूई को उन्होंने जाने दिया, लिसांड्रो को उन्होंने जाने दिया, और कौन सा था उसको जाने दिया, सेबेस्टियन हॉलर के दे 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 लेफ्ट हिम, उसको भी जाने दिया. तो डेफिनेटली उनके पास कोटा पड़ा हुआ है. अब वो तो जितना चाहेंगे वो मांगेंगे. उनको पता है यूनाइटेड आर इन डेस्परेट सिचुएशन. हम्म. यूनाइटेड विल पे एनीथिंग फॉर हिम. हम उनसे जितना मांगेंगे यूनाइटेड देगी, क्योंकि एंटनी को भी जाना है, यूनाइटेड भी फोर्सफुली लेके आना चाहेगी. तो भाई ये तो एक डेडलाइन डे ट्रांसफर सागा होगा. Yes, definitely. Moving on to the matches, let's move to Arsenal Fulham. Just predict the score. ये easy game है उनके लिए. श्रेय भाई, Arsenal Fulham. I think for some reason I don't think this is going to be an easy match. I think people are thinking it's going to be easy, but I think this is one of the best this Arsenal defense can have, because as much as Saliba, Gabriel, Ben White in the right back has played well, Mitrovic coming at the front of you straight to your head, I think it's going to be difficult. Mitrovic just manhandled Trent in the first game. Like, he fully roasted Liverpool defense. Like, he was all over Trent, all over the head of Trent, and that was difficult. I think Mitrovic, just like he showed last week against Brentford, is one of the most difficult striker physically to handle. And I think this match is more tough than people give it credit for, because Fulham also have players like Palinia, Andres Pereira in midfield. They also have players like Mitrovic up front as well, who can create something as well.
Palinia has been one of the buys. They also have a good goalkeeper in Berdeno as well, who will most probably play against his former employees and will have something to prove on. And along with that, I think they have at least now got at least a settled back four, unlike the previous Fulham sides. I think I cannot see Fulham win, but I don't know why I can see here the match ending either in a 2-1 Arsenal victory or a 2-2 draw. I'm just getting a bad feeling regarding that. A bit of reality check for Arsenal that they're still in a top four battle and not in a title race. And I do think that they might get a reality check here. I think it's going to be a big battle between Mitrovic and William Saliba. I think that's going to be the big battle which can really decide this game. And I can see Mitrovic trying to bully him, but Saliba also holding his own. And I see Arsenal winning 2-1, but my brain says it's Arsenal 2, Fulham 1, but my heart says it's Arsenal 2, Fulham 2. ओके ओके क्या बोलते हैं श्रेय भाई, आप अपने स्कोर प्रेडिक्ट कर दो क्रिस्टल पैलेस मैन सिटी के लिए, देन लिवरपूल बॉर्नमथ के लिए, एंड ब्रेंटफोर्ड एवर्टन के लिए, देन विल I कम टू think लीड्स, I चेल्सी एंड think लेस्टर. I think, in my opinion, Crystal Palace will not be able to stun City today. It's impossible. I think City are a team who always carry their revenge on their back, in their pocket, and City never forget the opponent which hurt them. I think City are a ruthless team. After the way we smashed them in the final, I think they have just smashed us after that. Smash after smash. And I think City are a team who never forget the team that smashed them. And until they beat them, they do not rest and sleep. So I think City will be for revenge, and I see Crystal Palace folding. I think it could be 2-0. I think it's going to be Man City 2, Crystal Palace nil. But do not be surprised. It can be a 4-2, 5-2, 6-2 even. I think City are an angry team, and that's what I'm afraid of. But one problem City can face in this game is I still think City have not done a good transfer window work. They have to find a winger. They are too slow right now. Grealish, I think, as much as Grealish is a very good player, he slows the play down. Foden is the most fastest player they've got. Mahrez has not got the legs to be quick. And I think City either have to, for me, play Alvarez in the starting 11. They need to play Alvarez, Haaland, and Foden as their front three. But I think the problem is if you play Alvarez, Haaland, and Foden, then creativity somehow goes away because two of them are strikers as well. So that's where the problem arrives. So I think City might have a bit of problems in the later part of the season. But I think Palace, I think, are going to be in trouble. And to beat City, you have to play at an intensity that's unheard of, and that cannot be repeated. I think it's going to be Manchester City 2, Crystal Palace nil. While I think for the other game, which is about Brentford and Everton, oh, this is a tight one because I think Brentford have started the season well. Tony has been really good so far. Like, Tony has reminded me somewhat of Drogba with his touches. Yes, not at the level, but he's so good right now. And I think Brentford have done a good job this season so far. But yes, the defense has been very shaky. Everton right now are looking relegation candidates, so that's a problem. But I do see Everton getting a draw in this game. I can see this game being 2-2. Poor game of football, an absolute poor game of football, and both the teams scoring from set pieces, headers after headers. Because people, this game is not going to be about football. This will be a rugby game with both teams trying to punch each other, go above each. Rondon trying to punch the Brentford players. This is the way this game is going to go on. Old way British game. That's the way I think Brentford Everton will go. While I think the other game you asked was Liverpool Bournemouth. Yes. If Liverpool do not beat Bournemouth, my goodness, I think if Liverpool don't beat Bournemouth, I will have no words because I think if they cannot beat Bournemouth, I think they should hand their resignation this season, and we should straight away, I think we all clubs, United, Chelsea, Arsenal, Tottenham, we should apologize to City for the lack of competition, forfeit City, give them a participation Premier League trophy, and let us compete for Premier League because if this keep continuing, I don't know who will ever win the Premier League title the way City are going on because Liverpool still are for me the most closest team to competing with them because Liverpool have the know-how to pull a 15-16 match winning run. Last year at one point of the season, City were 11 points above Liverpool. But boom, it suddenly became one. That's what Liverpool are capable of. And that is where I think at the moment, somewhat Chelsea is not capable of people. I think as much as we are a good team on paper, Arsenal, no way. Yes, they are doing a good job, but let's not get ahead of ourselves. These guys, once Europa League kicks in, playing PSV, traveling somewhere away to the world, let's see how their players play when they play on a
they travel with plane, they play on a Thursday night, cold night, they come back home, they have an off on Friday, then Mikel Arteta calls them on a training on Saturday on the weekend, then they train, then they go in the bus, they travel to Sunday. People, Europa League and playing Premier League is the hardest job in the world. A lot of teams who play in the Europa League have never ever won the title, in my opinion. I can remember when it's happened, because Europa League is a killer of stamina. It's a clear killer of players' morale, and I think playing on Thursday and Sunday will trouble Arsenal. So I think Liverpool have to find their form, and they're still a very capable side, but the injury crises are big. I think if they cannot beat Bournemouth, I don't give a damn they have players injured. If they cannot beat one of the worst side in the league, I think, I'm very sorry, but this will remind me of Jurgen Klopp in his 7th year at Dortmund, because then people, there could be problems. And Liverpool have to win this game, and I cannot see other than a 2-0 Liverpool win here. If something else happens, my God, Liverpool fans in their whole, I think Liverpool fans in last 6 years have never experienced this. They've never experienced losing to United. They've never experienced drawing 2 games in a row to Palace or Fulham. They call themselves the mentality monsters. That's what Liverpool are. I'm very sorry, but if they drop points to Bournemouth, they're just going to become a small cat in front of a polar bear. That's what Liverpool are going to become. And I think they need to improve, or the polar bear is going to eat the heck out of them. And that polar bear is Manchester City. Because Manchester City always eat out Liverpool in the Premier League. And sorry, people, whether you like the history, you don't like the history, in the history books, it will be Liverpool won't go down as the best team in this era. I'm very sorry. If people remember the best team in this era, that's Sir Alex Ferguson, Manchester United from 2005 to 2012. The best side in Premier League is Manchester United, and the best side in the world is Real Madrid and Barcelona Pep. People forget that Sir Alex Ferguson won 5 Premier Leagues in 7 years, where the 2 titles he lost, one was 1 point, where Chelsea beat them at Old Trafford with an offside goal. I remember that and enjoyed that, where even Makeda had it scored with the hand as well. And the second one was on goal difference, where City pulled off a comeback against QPR. Do not forget that. Liverpool will finish their Premier League era with 1 title in 7 years, 1 Champions League in 7 years, 1 Carabao Cup in 7 years, 1 FA Cup in 7 years. I'm sorry, but that is ridiculously bad. Tuchel just needs 1 Premier League to match Klopp's legacy, people, and that is an embarrassment. So for me, it's going to be Liverpool 2, Bournemouth 0, in my opinion. That's यार श्रेय भाई, वन थिंग टू ऐड यार, आपने दिल दुखा दिया वो वाली बात करके. मैं अभी भी उसको देखता हूँ, उस गोल को सेलिब्रेट. मैं तो खैर उस वक्त इतना मैं वो नहीं था, बड़ा नहीं था, मैं तो बहुत छोटा था, बट डेफिनेटली दिल दुखता है यार वो देख के, जब वो शर्ट उतार के भागता है अग्वेरो, और यूनाइटेड उस वक्त यूनाइटेड सेलिब्रेशंस कर रहे होते हैं भाई. मैंने तो वीडियोस देखे, उसमें लोग सेलिब्रेशंस कर रहे होते हैं कि भाई अब तो जीत नहीं पाएगी. बिलाल भाई, आपको ये नहीं शायद याद होगा कि उस टाइम पे वो मैच ने यूनाइटेड को टाइटल हरवाया. उस सीजन में यूनाइटेड 8 पॉइंट ऊपर थी सिटी के 1 पॉइंट पे. वो क्या हो गया, ये वीगन एथलेटिक से हार गए, जिनको हमेशा ये 5-0 ठुकते थे. 1-0 DW स्टेडियम पे हारे. फिर ये सिटी से 1-0 हारे, मुझे याद है जब कंपनी ने गोल मारा, और फिर यूनाइटेड ने एक और मैच में ड्रॉप पॉइंट्स करे. आई थिंक पीपल भूल जाते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग थी वो यूनाइटेड टीम, कि वो 7 प्रीमियर लीग जीत सकती थी. पीपल ये भूल जाता है. आई थिंक पीपल यहाँ पे आजकल हम सिटी लिवरपूल की बात करते हैं, बट सम ऑफ देम हैव टू विन ट्रेबल. आई थिंक अंटिल अनलेस ट्रेबल जीतोगे, और यूनाइटेड ने 2 बार, एक बार ट्रेबल जीता था और एक बार प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग जीती थी, जब उन्होंने चेल्सी को फाइनल में हराया था. आई एम सॉरी, बट जब तक सिटी लिवरपूल वो चीज नहीं करती, एंड इवन चेल्सी नहीं करती समवॉट, आई डोंट थिंक वी कैन चैट विद मैनचेस्टर यूनाइटेड. Leicester has the same amount of PL, FA Cup, Carabao Cup, what is it, Community Shield, same number as Liverpool. That's the golden generation. यार पता है, मैं बताता हूँ, लिवरपूल फैंस अभी इतना खुश हो रहे हैं, सिटी फैंस इतना खुश हो रहे हैं. काश मैं यूनाइटेड फैन इस वक्त जो हम सहते हैं ना, मतलब इतना क्रिटिसिज्म जो होता है भाई, काश हमारे वक्त में ऐसा होता कि इस वक्त यूनाइटेड वो कर रहा होता. मतलब एक ग्लोरीफुल एरा था हमारा यार. आज के बच्चे क्या जाने भाई, आज के लोग क्या जाने. एक ग्लोरी, एक एरा था. लोग अब बैंटरिंग करेंगे यूनाइटेड को, सोशल मीडिया का जमाना है, तो भाई भूल ही गए हम सब चीजें कि भाई पिछले सालों में क्या किया था. आज तक प्रीमियर लीग की वो टीम्स कुछ भी नहीं कर पाई. सिटी भी
प्रीमियर लीग जीत गई, दे हैवंट वॉन यूसीएल, वो थ्री उन्होंने पीट्स नहीं किए कुछ भी, थ्री इस पीट साल नहीं हो की गए। उन्होंने। उन्होंने अबे देखते हैं, इस साल भी देखी जाएगी, देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन यूनाइटेड ने कंटिन्यूअसली एवरीथिंग किया था। तो वो चीज है, याद रखने वाली बात है, ग्लोरीफुल एरा था वन ऑफ द। उसके बाद जो अब होता है ना, हर उरूज को एक जवाल आना है, तो यही हुआ हमारा। बिग न्यूज पीपल, एक बिग न्यूज है। फीफा लिफ्ट सस्पेंशन ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ओ नाइस नाइस नाइस। ग्रेट न्यूज़, आई ग्रेट थिंक न्यूज़। फाइनली, आई थिंक थोड़ा फुटबॉल सेफ हो गया। आई थिंक दैट्स ओनली अ गुड न्यूज है, बिकॉज बहुत यस, ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। सो चलो, आई थिंक बेटर फॉर द करियर, बिकॉज आई थिंक बहुत यस। सारे प्लेयर्स इफेक्टेड थे। आई थिंक फाइनली कोई श्रेय अच्छी न्यूज। भाई को जाना होगा, उससे पहले चेल्सी लेस्टर पे आते, देन एक अच्छा, अब वो अगर हो अगर पाएगा, फ्री हो। एक हाँ, मिनट अब्दुल्ला एंथनी भाई, आई एम एंथनी का कटिंग भी यू। रूमर आया है। आई थिंक 90 मिलियन का चक्कर नहीं है बिलाल भाई, 90 मिलियन का कोई चक्कर नहीं है इसमें। द मेन प्रॉब्लम इज आईएक्स को डर है, मार्केट में रिप्लेस करना चाहते हैं उसको हाकिम जियेक से। लेकिन क्योंकि चेल्सी चेल्सी आर प्लेइंग आईएक्स, चेल्सी को पता है कि हम्म। आईएक्स को अभी मिल रही है 90 मिलियन, तो यार तुम हमें भी थोड़ा बारिश कर दो उस पर। आई थिंक चेल्सी ये वाली चीज खेल रही है। चेल्सी करिए यार, जैसे तुम्हें 90 मिल रहे, थोड़ी बारिश कर दो, हमें 35 दे दो। चेल्सी लिटरली उनसे 40 मिलियन मांग रही है हाकिम जिया के, जबकि हम उसे 15 मिलियन में देने को तैयार थे एसी मिलान को। तो आई थिंक क्या हो रहा है, जब तक हाकिम जिया नहीं साइन होगा, आई थिंक एंथनी नहीं साइन होगा। आई थिंक यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। चेल्सी आर प्लेइंग विद यूनाइटेड। आई थिंक चेल्सी हाकिम जिया का पर बेच के रहेगी, क्योंकि हम क्यों प्लेयर रखेंगे जो रहना नहीं चाहता। बट आई थिंक हाँ, यही प्रॉब्लम है, चेल्सी चाहती है थोड़ी बारिश हो जाए पैसों के पे थोड़ी, तो चेल्सी कह रही है कि 90 मिलियन में से यार तुम्हारे पास इतना आ रहा है, कुछ दे दो। आईएक्स कह रही है हम यार अकेले रखेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम 20 मिलियन दे रहे हैं। यहीं पे आई थिंक प्रॉब्लम आ रही है। एंड आई थिंक एंथनी इज स्टिल अ वेरी गुड प्लेयर। मैं एग्री करूंगा आप सबसे कि 90 मिलियन नहीं वो प्राइस है जो आज के मार्केट में हमें उसे देना चाहिए। आई एब्सोल्युटली एग्री। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर हम दूसरी करेंसी में इसको देखें, तो शायद एक ब्रिटिश पाउंड में आई थिंक 70 बनता है, 90 तो ये किसी और करेंसी में है, 75 बनता है। एंड पीपल भूल जाते हैं निकोलस पेपे भी 70 के लिए आया था, कैपा एरिजाबालागा भी 70 के लिए आया था, इवन समवट जैक ग्रिलिश 100 में आया है। आई थिंक पीपल, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मार्केट बहुत खराब हो चुकी है। आप कह सकते हो प्रीमियर लीग के मनी के कारण होगी, क्योंकि सबको पता है कि प्रीमियर लीग क्लब को आप, क्योंकि अभी आप भूल रहे हो लुकास पैकेटा वेस्ट हैम होने वाला है 50 मिलियन में। आई थिंक वी ऑल आर फॉरगेटिंग दैट एज वेल। 50 मिलियन में वो डील हो रही है। तो इसाक ने क्या प्रूफ करा है, 6 गोल मारे उसने, और 6 गोल वाला प्लेयर 70 मिलियन के लिए बिक रहा है। लाइक मैं आपके थॉट्स लेने चाहूंगा उस डील पे, बट दैट इज एन एब्सोल्यूट एम्बैरेसमेंट। यार डेफिनेट। देखो श्रेय भाई, पता है क्या सीन है, मैं किस वजह से ये चीज बोलता हूँ कि एंटनी को 100 मिलियन हम दे रहे हैं, क्योंकि हम यूनाइटेड फैंस हमने देखा हुआ है ना, हमने गलतियां बहुत की हुई है पास्ट में। देखो, आप मेम्फिस डिपे को देखा, आपने आपने एंकेल डिमेरिया को देखा, आपने लुकाकू को, आपने पोग्बा को देखा, हैवी हेफ्टी फीस दे के लाए हम, कुछ प्रूफ किया? नहीं किया कुछ भी प्रूफ। तो यही चीज है एंटनी का एक्सेप्शन, आई कंसिडर हिम एज एन एक्सेप्शन भाई। आई डेफिनेटली लव हिम। एरिक टेन हैग को मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ, एरिक टेन हैग को मैं सपोर्ट करूंगा, जो वो साइनिंग लाना चाह रहे हैं, तो भाई मैं बोलूंगा क्लब पोर करे। बट उसके बाद क्या होना चाहिए, हमारे जो हमारी जो हायरार्की है, जो हमारे ग्लेजर्स हैं, पैसे डालो भाई तुम। जितने पैसे निकाल रहे हो ना तुम इस क्लब से, नोचे तुमने पैसे भाई, हर हर पूरे हर साल पैसे नोचते हैं ये लोग यार क्लब से। और वो पैसे अब डालो क्लब के अंदर, और फिर बाहर निकल जाओ फौरन से। ये चीज चाहता हूं मैं। इसीलिए मैं वो नहीं कर रहा कि भाई इतनी हेफ्टी फी देनी पड़ रही है, ये है वो है भाई। जितना पैसा तुमने इस क्लब से निकाला है ना, वो डालो। चाहे मैनेजर्स को उसकी साइनिंग दो। तुमने अपनी साइनिंग्स बहुत थोप ली भाई मैनेजर्स के ऊपर अपनी अथॉरिटी बहुत चला ली। अब हमें चाहिए कि यूनाइटेड का वो वाला एरा जो पहले हुआ करता था, जिसमें मैनेजर के पास अथॉरिटी होती थी, जिसमें सर एलेक्स फर्गूसन के आगे कोई आंख उठा के बात नहीं कर सकता था। ये चीज हमें ऐसी यूनाइटेड चाहिए। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि भाई एंटनी आए। लेकिन मुझे डर हमेशा से रहेगा यही, कि भाई वन सीजन वंडर ना हो, अब बाद में कोई फिर इंजरी मसले ना हो। यंग है, यस। ब्राजीलियन है, तो हमें पता है कि ब्राजीलियन नखरे कितने होते हैं, हमें पता है भाई। तो ये चीज है। इसलिए वरना तो भाई आई एम हैप्पी, हो जाए, होना चाहिए, एक अपग्रेडेशन हो रही है हमारे स्क्वाड के ऊपर, तो डेफिनेटली। और आइजैक की जहां तक बात रही, यार क्या बोल सकते हैं आइजैक को, इतनी इन्फ्लेशन हुई है मार्केट के अंदर, 70 मिलियन उस बंदे को जा रहे हैं। न्यू कासल तो चलो देने को उनके पास है, बहुत ये पैसा पड़ा देखो, हुआ है ये उनके पास। वही ना। 100 मिलियन। पाकिस्तानी फैंस को नहीं, लाओ।
ये उसने कहा है, ये फ्रैंक लैम्पार्ड ने कहा है, आई थिंक ये स्टेटमेंट फ्रैंक लैम्पार्ड ने कहा है कि ही इज अ 100 मिलियन वर्थ प्लेयर। कल रखते हैं स्ट्रीम, वो करेंगे, पाकिस्तान इंडिया की कल रखेंगे तो मेरे ख्याल यार, से उसका मजा है ना, आएगा। श्रीलंका अफगानिस्तान का। श्रीलंका और अफगानिस्तान का, हाँ मजा आएगा यार, मजा आएगा देखने में, मजा आएगा। ओके। पर आई थिंक अफगानिस्तान जीत पाकिस्तान गई वो वर्सेस मैच तो। इंडिया भाई, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ओ माय गॉड। पर श्रेय भाई, मेरे को कल, आप ओके, पहले आप बोलो, फिर मैं बोलता कि आप इसके बाद मेरे को पता नहीं कल चेल्सी ये लेस्टर है, क्या। मेरे को कल के मैच की ज्यादा एक्साइटमेंट, आप हैरान हो गए, पता नहीं क्यों, क्योंकि आई लव वॉचिंग यार किस तरह अफगानिस्तान क्रिकेट खेलती है। श्रीलंका भी मुझे अच्छी टीम लगती है, आई थिंक जिस तरह हसरंगा है, कुछ और 2-3 प्लेयर है, चलो यार कुछ तो है, कुछ देखने को तो रह गया है, फुटबॉल ही है अब। और कहीं ना कहीं ये ना हो चेल्सी लेस्टर से पॉइंट्स ड्रॉप कर दे, तो आई थिंक वो भी एक बड़ी अच्छी चीज है, बिकॉज नहीं, रियलिटी में कुछ नहीं पता, कल साउथहैम्पटन यूनाइटेड को हरा दे, चेल्सी लेस्टर से ड्रॉ कर ले, आई थिंक ये चेल्सी और यूनाइटेड की दोनों की बोगी टीम्स हैं, एंड कहीं ना कहीं आई थिंक वी हैव सीन दिस हैपन। मैं चेल्सी लेस्टर पे यही कहूंगा, आई थिंक चेल्सी लेस्टर एक बहुत लाइक पीपल हैरान हो गए सुन के, लेकिन चेल्सी हैव ओनली बीटन लेस्टर वन टाइम एट स्टैम्फोर्ड ब्रिज पिछले 5 साल में, बिफोर दैट कॉन्टे टाइटल विक्ट्री। कॉन्टे की टाइटल विक्ट्री के बाद हमने हराया नहीं है लेस्टर को होम पे, बार वो एक विक्ट्री थी जो एफए कप फाइनल के सीधा बाद आई थी, जहां पे हम फाइनल हारे थे, फिर हमने इनको 2-1 हराया था, जहां पे अमाटे ने चेल्सी का फ्लैग गिर दिया था, कंट्रोवर्सी हुई थी, एंड चेल्सी के प्लेयर्स में फाइटिंग हुई थी लेस्टर के बीच में। लेस्टर ने हमेशा चेल्सी को ट्रबल करा है, क्योंकि वार्डी है, मैडिसन है काउंटर में, लेकिन मुझे ये लग रहा है पीपल की कहीं ना कहीं इस बार लेस्टर एक ब्रोकन टीम है। आई थिंक लेस्टर में डिजायर नहीं है, लेस्टर के प्लेयर्स आई थिंक दे आर नॉट प्लेइंग फॉर द शर्ट। एक लीडर कैस्मस माइकल क्लब छोड़ के जा चुका है। आई थिंक जब आपका एक प्लेयर जो इतना रिलायबल है, फोफाना, वो ड्रेसिंग रूम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ही वांट्स टू लीव द क्लब। टीलीमेंस आर्सेनल के साथ फ्लर्ट कर रहा है, इवन अभी उसके यूनाइटेड के साथ लिंक ना तोड़ो, आई थिंक अगर यूनाइटेड की कहीं ना कहीं मिडफील्डर और चाहिए, यूनाइटेड कैन ट्राई इवन फॉर टीलीमेंस, लिवरपूल को भी ना हटाओ इसमें, लिवरपूल के पास मिडफील्ड क्राइसिस है, सो दे कैन इवन गो फॉर टीलीमेंस। तो आपका एक प्लेयर तो अनक्लियर है जो रहना नहीं चाहता क्लब में, फोफाना तो आउट ऑफ स्क्वाड ही लग रहा है, ही वोंट प्ले। एंड आप इनके सेंटर बैक देखिए, डैनियल अमाटे एंड जॉनी एवंस, अगर काय हावर्स कैन नॉट इवन स्कोर अगेंस्ट देम, आई थिंक he should immediately tender his resignation for football, because ये तो वन ऑफ द वर्स्ट डिफेंडर्स है जो मैं सोच सकता हूँ। सो सॉरी, बट जॉनी एवंस इज नॉट द प्लेयर ही वाज। आई थिंक फोफाना की प्रोटेक्शन पे बहुत बड़ा पार्ट खेलती है, दैट्स अ बिग पार्ट। एंड सेकंड थिंग इज आई थिंक डैनियल अमाटे एंड जॉनी इवांस, क्योंकि सोयुंको फेवर में नहीं है आई थिंक ब्रेंडन रॉजर्स के। मैं सरप्राइज हूँ, क्यों, मुझे कहने की फीलिंग भी आ रही है कि शायद ब्रेंडन रॉजर्स इस गेम के लिए बैक 3 खिलाएंगे, बट इवन देन डैनियल अमाटे एंड जॉनी एवंस, I think Mason Mount and Sterling should be absolutely pounding them with dribbling and skills, and they won't be able to handle. And जब आपका एक स्क्वाड होता है ना, जब प्लेयर्स खेलना नहीं चाहते, मैनेजर फ्रस्ट्रेटेड है, बोर्ड कह रही है कि हम आपको पैसा नहीं दे सकते कुछ स्पेंड करने के लिए, आई थिंक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। एंड पीपल, मैं इतना जरूर कहूंगा कि लेस्टर फोफाना असली में इसलिए नहीं बेच रही लेस्टर फोफाना, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि अगर वो मार्केट में से रिप्लेस करने जाएगी, पीपल विल आस्क a lot of money, a lot of money. I think Leicester are taking revenge from Chelsea. I think people might like it or not, but Colwill था प्लेयर जिनको चाहिए था, Colwill was a player they needed, और चेल्सी ने उसे ब्राइटन को दे दिया। I think कहीं ना कहीं that anger is being taken out as well, and मुझे ये लगता है कि people should be keeping a big eye on Leicester, because अगर ऐसे ही चलता रहा, रॉजर्स सैक हो गया, उसके बाद फुफाना भी चले गया, टीलीमेंस भी चले गया, और चलो हम 2 मिनट में मान लेते कुछ अच्छी रिप्लेसमेंट ना आई, they can be a doubt for even relegation battle this season। क्योंकि अगर फुफाना और टीलीमेंस चले जाते हैं और ब्रेंडन रॉजर्स चले जाता है, आई थिंक इनका स्कोर बहुत वीक है। कैसमस माइकल नहीं है, डैनी वॉर्ड है कोई गोलकीपर, आई थिंक टीलीमेंस की रिप्लेसमेंट कौन है, डेनिस प्राइट, आई एम सॉरी, लेवल्स अपार्ट। और अगर फुफाना जाता है, डोंट टेल मी कि उसकी रिप्लेसमेंट सोयुंकू है। आई थिंक बिग प्रॉब्लम है लेस्टर सिटी के लिए। हार्वी बार्न्स इंजरी प्रोन हो गया है, सबको याद होगा कि एक टाइम पे रिकार्डो परेरा वाज हैज हाईली रेटेड, जैसे अब आप जेम्स ट्रेंट को करते हैं, कैंसेलो को करते हैं, रिकार्डो परेरा वाज फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, बट उसको करियर थ्रेटनिंग इंजरी हो गई, आउट फॉर 6 मंथ्स एटलीस्ट। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। एंड रायन बर्ट्रेड भी इंजर्ड है, तो लेस्टर के पास कोई लेफ्ट बैक ही नहीं है, दे डोंट इवन हैव वन प्रॉपर लेफ्ट बैक। पीपल, हम सब लीड्स कह रहे हैं, हम सब बोर्नमूथ कह रहे हैं, हम सब फुलहाम कह रहे हैं, हम सब नॉटिंघम फॉरेस्ट कह रहे हैं, मुझे एक रीजन बताना अभी कि लेस्टर विल स्टे इन टॉप 10। आई डोंट थिंक सो, एंड आई एम प्रेडिक्टिंग Chelsea to smash the heck out of Leicester, and if we don't, I think we should be embarrassed of ourselves. We should literally apologize to the fans and give up this Premier League season, क्योंकि इनसे नहीं ड्रॉ करना चाहिए। I am very sorry, Leeds has something to fight for, ये गेम में नहीं है,
and I can see Chelsea smash Leicester City 4 or 5 0 in this game, because I think Leicester City are in massive trouble. I can see Chelsea start padding goals here, and then we move on to more tougher games in Southampton, West Ham, and then Liverpool Football Club. That could be a match which could be a massive part. And I think Tuchel is going to cook Jurgen Klopp absolutely, but that's too far away. And I think Aubameyang is coming to Chelsea has been. Obama blood clan Yang is coming to Chelsea. And along with that, Fofana is coming, and most probably Gordon is coming. And whether people like it or not, I think these are signings. And I think United Chelsea are ending their window strongly. Anthony, Casemiro, अब light on. Gakpo, great window. And Chelsea, Aubameyang, Gordon, Fofana. Wow. वाओ, मैं आपके प्रेडिक्शन पे लेना चाहूंगा. आपको क्या लगता है चेल्सी लेस्टर में क्या होने वाला है? क्या आप भी 4-5 मिल जा रही है? मैं यार 3-1 जा आप बताओ. मैं 3-1 जा रहा हूँ चेल्सी. चेल्सी मैं ज्यादा नहीं जा रहा, ज्यादा, क्योंकि मैंने पिछली बार आपको बताया आपकी स्ट्रीम में बैठ के मैंने जो बोंगी मारी थी इतनी पड़ी 4-0 5-0 की, मेरा ही उल्टा हो गया, 3-0 हरा दिया लीड्स ने. लेकिन भाई मैं जाऊंगा 2-0 विक्ट्री फॉर चेल्सी या 2-1 विक्ट्री फॉर चेल्सी. मैं छोटे पे ही रहूंगा, ज्यादा मैं वो हाइप नहीं क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पिछली बार मेरे साथ सीन हो चुका है, तो इसीलिए. बाकी यही है कि चेल्सी विल प्ले गुड, और चेल्सी की भी अच्छी विंडो जाने वाली है एज मतलब यूनाइटेड के साथ इट वुड बी गुड. मैं तो यही रेट करने की कोशिश कर रहा था कि तीन जो बीच में जो चल रही थी बातचीत के, बार्सिलोना, चेल्सी या यूनाइटेड में से कौन सा ऐसा क्लब है जिसकी सबसे अच्छी ट्रांसफर विंडो जाएगी. तो डेफिनेटली बार्सा तो एक एक्सेप्शन पे ही चली गई, बट कंसिडरिंग द फैक्ट भाई चेल्सी एंड यूनाइटेड की अच्छी ट्रांसफर विंडो जा सकती है. लास्ट 5-6 दिन में पता है कि भाई कुछ ना कुछ तो होगा. चेल्सी की भी सेम सिचुएशन है, यूनाइटेड की भी सेम सिचुएशन है, कुछ ना कुछ तो होगा डेफिनेटली. लेकिन भाई जहां तक क्रिकेट की बात रही, हाय 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 क्रिकेट आ रहे हैं भाई, दीवाने हम दीवाने, मजा आ जाएगा. मैं एक डिसएग्री करूंगा आपसे थोड़ा. बार्सा की विंडो हम कहते हैं ना एक सेक्शन जा रही है, शायद फ्रैंकी डी जॉन्ग रह रही है, शायद चलो ऑन पेपर उनकी विंडो अच्छी जा रही है क्योंकि कोंडे डिफेंस में आ गया, आपके पास लेवेंडोस्की आ गया एज ए स्ट्राइकर. तो अभी करंट के लिए ओके अच्छी साइनिंग है, करंट के लिए उन्होंने कहने स्क्वाड बिल्ड कर दी है. लेकिन लेवेंडोस्की है 34 ईयर ओल्ड के, मैक्स टू मैक्स 1 एक अच्छा ईयर दे देंगे, मुझे उससे ऊपर नहीं लगता. रफीनिया, डेम्बले यस, लेकिन डेम्बले ज्यादातर एम्बुलेंस में रहता है ना कि टीप पिच पे, तो एक वो भी प्रॉब्लम है. उसके बाद आंसू फाटी पे जाते हैं, वो एक अच्छा प्लेयर है एंड वहां पे इनकी पोजीशन सॉर्टेड है. आंसू फाटी एंड फेरन टोरेस. पेड्री इज वर्ल्ड क्लास, आई थिंक इसमें कोई डिनाइल नहीं है. एंड आई थिंक अब बैक में जाओगे मिडफील्ड में फ्रैंकी डी जॉन्ग अब रह रहा है, बट उसका मोराल कैसा होगा? अब तो चलो वेजेस कट कर ली, लेकिन कितने टाइम तक वेजेस कट करते रहेंगे? कोंडे गुड साइनिंग, पर अगर ये अलंजो को नहीं लाते तो उनका लेफ्ट बैक कौन होगा? सेंटर बैक्स में अभी भी आई थिंक एरिक गार्शिया बड़ी गेम्स में जब वे बायर्न को खेलेंगे आई थिंक ही विल बी स्पन अराउंड अ लॉट. और टर स्टैगन बहुत डाउट है, ही इज बिकम एन एब्सोल्यूट एवरेज गोलकीपर जो वो पहले होता था. एंड मैं इतनी बात जरूर कहूंगा, चलो ऑन पेपर बार्सा इसी अच्छा कर ले, चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल पहुंच जाए, लेकिन इन्होंने कितने प्लेयर्स को वेजेस ओ करते हैं. सर्जे बस्केट्स को वेजेस ओ करते हैं, जेरार्ड पीके को वेजेस ओ करते हैं, फ्रैंकी डी जॉन्ग को वेजेस ओ करते हैं. उसके ऊपर इनके पास 34 ईयर का लेवेंडोस्की है जिसकी इनको कोई रीसेल वैल्यू नहीं मिलनी, कुछ नहीं मिलना. 500 के पे बैठा है, 400-500 के पे. उसके बाद डेम्बले को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवा लिया, लेकिन क्या वो पिच पे रहेगा या वो ज्यादा डॉक्टर के पास रहेगा, वो भी हमारे लिए कंसर्न है कि कितना खेलेगा. वहां पे आपने उसकी वेजेस भी बढ़ाई है. उसके बाद आपने चेल्सी का आप अलंसो टारगेट कर रहे हो जो भी अराउंड 30 ईयर्स की एज के अराउंड है, तो अगर आप उसको टारगेट करोगे उसको भी वेजेस दोगे, उसका प्राइम कितना रह गया है. फिर आपके पास टर सेकंड जैसे हाईली वेजेस प्लेयर है जो इंप्रूव नहीं कर रहे. सर्जे बस्केट्स पे धीरे धीरे थोड़ा ओल्ड हो रहे हैं. जेरार्ड पीके बार्सिलोना फैंस माइट नॉट लाइक इट, बट वो अब उस लेवल पे नहीं है एंड ही इज नॉट अ स्टार्टिंग लेवल सेंटर बैक. एंड्रेस क्रिस्टेंसन शुड बी प्लेइंग ओवर इन माय ओपिनियन, तो वहां पे भी प्रॉब्लम है. एंड अगर बार्सा ज्यादा सक्सीड ना हो या पैसा ना आया, कितने लीवर खोलेंगे? कब तक लीवर खोलते रहेंगे? कितने लीवर खोलेंगे? मैरिज के लिए अपना स्टेडियम इन्होंने दे दिया है, और क्या करेंगे? स्पॉटिफाई पे स्टेडियम पे गाने चलने लग जाएंगे. एंड कितना हद तक जाएगा? लाइक एक लिमिट होती है, लाइक व्हाट दे विल डू. यहाँ पे मैरिज है क्या बार्सिलोना के नाम से स्कूल खोल देंगे, बार्सिलोना स्कूल ऑफ एजुकेशन? लाइक इसलिए तो सिटी को बुलाया था पैसे देने. एक लिमिट है, एक एब्सोल्यूट लिमिट है जहां तक जाएगी. एंड बार्सा आर रियली प्लेइंग विद द फ्यूचर. या तो उनका प्रेजेंट बहुत अच्छा जाएगा, उससे स्पॉन्सर्स आएंगे, क्लब को रेपुटेशन मिलेगी, फैंस क्लब के साथ टिके रहेंगे, तो क्लब ग्रो होगा. लेकिन अगर ये उल्टा चले गया, आई थिंक बार्सा फैंस अभी इंजॉय कर रही है, बट मैं राइडर कुछ साल में सक्सेसफुल ना हूं, बल्कि 3 साल में मैं को चेल्सी एक्सिस्ट ही नहीं करती.
आई थिंक बारसा के पास बहुत फाइनेंशियल ट्रबल है, वो कहीं ना कहीं उस हाइप में जा रही है कि हमें रियाल के साथ कंपीट करना है। सॉरी टू से, आपका जो स्क्वाड अब बन भी गया ना, अब तब भी रियाल के साथ कंपीट कर सकते हैं। एक तरफ टीम है जिनको जीतना आता है, एक तरफ टीम है जिनको जीतना नहीं आता। मेरे को ये बोल रहे हो कि रफीनिया will be more of a big game player than Benzema. He cannot even touch feet of Benzema, not even a boot, and that's being very honest. आप एम्बुलेंस की बात कर रहे हो जो फिट ही नहीं रहता, ना कि वहां पे सारे के सारे प्लेयर्स फिट रहते हैं। लुकास वास्केस हैज डन मोर फॉर रियल मैड्रिड एंड डेम्बेले हैज डन फॉर बार्सा। आई थिंक वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। लुकास वास्केस विंगर था, राइट बैक बन गया, लेकिन अभी भी उस इफेक्टिवनेस यार I'll add one thing. राफीनिया की जितनी यूसीएल अपीयरेंसेस है ना, उससे ज्यादा विनीशियस की यूसीएल की ट्रॉफीज है। आई थिंक ये लोग रियलाइज नहीं करोगे। मिडफील्ड देखिए, चुनेमी, कामाविंगा, वेलवर्डे, क्रूज, मॉड्रिच। बारसा की मिडफील्ड है पेड्री, फ्रैंकी डियोंग, फ्रैंक कीसे। ओके, स्टार्टिंग 11 गुड है, बैकअप्स कौन है? गावी ओके टैलेंटेड है बट यंग है। उसके अलावा कौन है? आई थिंक इनका वो यंगस्टर है, कौन था? रिके पिग, उसको तो इन्होंने एम्बैरेसिंग तरीके से निकाल दिया क्लब से। पैब्लो तोरे, ओबामेंग जा रहा है, डिपे जा रहा है, और उसके बाद ब्रेथवेट अभी तक नहीं क्लब से निकाल पा रहे। लाइक इनके फैंस आर बोइंग दैट प्लेयर, यार उसकी क्या गलती है? ही इज टेकिंग हिज राइटफुल वेजेस। एंड फ्रैंकी डियोंग ने भी कहीं ना कहीं, आई थिंक फ्रैंकी डियोंग को जो बूज मिली है ना, इट हैज इंपैक्टेड हिम। जो बूज है, जो अब्यूजेस है, आई थिंक सॉरी टू से पीपल, बारसा फैंस माइट डिसएग्री, यू माइट अब्यूज मी, बट आई एम सॉरी, बट ये कोई सही तरीका नहीं है क्लब रन करने का। दिस इज एन हाउंडिंग आउट ऑफ प्लेयर्स, दे आर गेटिंग मिसट्रीटेड। एंड आप देखो सिटी को किस तरह रन क्लब कर रहे हैं, लिवरपूल को किस तरह क्लब चला रहे हैं। रियाल मैड्रिड, लोग रियाल को पैसा वाला क्लब मानते हैं, लेकिन रियाल ने कुछ साल से ज्यादा पैसा स्पेंड नहीं करा। रियाल 15 साल पहले गैलेक्टिको को साइनिंग करता था, और उस टाइम पे पता क्या होता था? बारसा सक्सेसफुल थी, रियाल कुछ नहीं जीत पाते थी, रियाल कुछ नहीं कर पाते थी। एक टाइम पे रियाल के पास बेस्ट प्लेयर्स थे वर्ल्ड में, पर तब भी कैंप पे 5-0 हारते थे। बट अब बारसा एंड रियाल हैव नो कंपैरिजन। बारसा के सिर्फ नाम रह गया है। इट्स लाइक चेल्सी इन द प्रीमियर लीग प्लेइंग वेस्ट हैम, ऐसे राइवलरी हो गई है, बिकॉज रियाल आर दैट गुड। यस, 4-0 हरा दिया, वो एक फ्रेंडली था। रियाल प्लेयर्स वर नॉट इवन टेकिंग इट सीरियस। आई थिंक बेंजेमा ड्रेसिंग रूम में जाके देखा होगा, एंड माय गॉड, वो सोचोगे यार ओके हरा दिया हमें, क्या हो गया? रैंक सेव करनी, यू कैन सेव इट, बट थिंग इज रियाल आर सो गुड। कंपैरिजन इन रियाल एंड बारसा में राइट नाउ, मेंटालिटी में डिफरेंस है। रियाल ने जिस तरह फ्यूचर के लिए बिल्ड करा है, आप देखोगे फाइनेंशियली उन्होंने 60 मिलियन कमा लिया कासा मेरे को। यस, ईडन हैजार्ड डील डिजास्टर थी, दैट इज ऑन फ्लोरेंटिनो पेरेज, वो एक एब्सोल्यूट डिजास्टर थी। लेकिन कासेमीरो इतने ओल्ड होके उन्होंने 60 मिलियन कमा लिए। उसके बाद अगर मैं बिलाल भाई से भी पूछूंगा, बीच में भी बिलाल भाई आपने कुछ सेल्स करी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? लेकिन किनको निकाला है यार? आई गेस किसको, मिल गया है ना। दो प्लेयर्स को निकाला है किसी को। मुझे नाम याद नहीं आ रहा इस वक्त। विनीशियस जूनियर तो है, वाल्वर्दे, और इनके बैकअप्स कुछ थे ना। उसको एक तो कोवाचिच गया था डियाज चेल्सी 2 साल पहले, डियाज। एक तो कोवाचिच अच्छा, गया था उनकी चेल्सी। बात करो, पहले की बात कर रहे हो? नहीं, इवन अभी कोई बड़ी बड़ी सेल जो हुई है, बड़ी बड़ी सेल्स। बड़ी सेल्स देखो, डीमारिया को पहले बेचा, इतना इतना उसमें बेचा। सबसे बड़ी आप उसकी एग्जांपल ले लो, रोनाल्डो की एग्जांपल ले लो। 30s में बंदा है, चलो गोट लेवल प्लेयर, लेकिन उसके भी कितने 117 मिलियन ले लिए हमने। मैं नेट पे देखता हूँ एक बार ना, आइडिया लग जाएगा इससे। रियाल के ट्रांसफर्स क्या थे 2021 में सीजन में? आई थिंक यहाँ पे रियाल ने जो काम करा ना सेलिंग पे, आई थिंक उनको क्रेडिट नहीं जाता, बिकॉज वो गैलेक्टिको क्लब है। पर रियाल हैव डन अ फैंटास्टिक वर्क। ये देखो रियाल यार अभी का, इन्होंने उसको लिया है क्या? इन्होंने उसको बेचा है, हाँ 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 हाँ, याद आ गया। डियाज। एक तो इन्होंने सेल करा है मार्टिन ओडेगार्ड को 40 मिलियन में, और सर्ज रेगुलियन गया 30 मिलियन में टॉटनहम। ब्राहिम डियाज नहीं, वो ज्यादा में नहीं गया। आई थिंक एक वो गया जेम्स रोड्रिगेज, कितने में लाई थी एवर्टन, मुझे याद नहीं आ हैमिस रहा। रॉड्रिगेज हाँ, हैमिस रोड्रिगेज भी गया है। 20-30 मिलियन में गया है। हकीमी भी 40 था, हकीमी हकीमी भी गया था, वो भी गया था, बोर्जा मायोराल आई बिलीव, है ना? तो आई सब थिंक जा रहे हैं, रियाल लेकिन के, ये मारियानो डियाज नहीं जा रहा है, बस खाली बोर्जा अटैक। मायोराल के, हाँ अभी बेचा है ना बोर्जा मायोराल को, तो कितने 15 to 16 मिलियन आई गेस। उस बंदे के भी भाई 15 to 16 मिलियन, 30s में आ चुका है, 30s से भी ऊपर की एज हो गई उसकी, तो अच्छी खासी। आई थिंक। और सबसे बड़ी बात है कि रियाल की, उनके दो अरे डिजास्टर्स हुए, एक सबसे बड़ी वरान 40 मिलियन, हाँ वरान यार, यूनाइटेड। अरे यार कैसे दिमाग से निकल गया। 40 मिलियन वरान ओडिगार्ड के, 60 मिलियन यूनाइटेड ने तो पूरा काम कर रखा है, लाइक रियल मैड्रिड का। लाइक उनकी पूरा एक प्लेयर यूज करते हैं उसको, पूरा मैटरनिटी इस्तेमाल होम कर लेते हैं। मैटरनिटी होम मैटरनिटी होम
पर मैं अभी भी कहूंगा, अभी भी वरान कासेमिरो खत्म नहीं हुआ है। आई थिंक मैंने लिवरपूल मैच में देखा था, हाँ वरान अभी भी है। पर 100 मिलियन कमा के रियल मैड्रिड इन दोनों प्लेयर के थ्रू, 110 मिलियन उन्होंने कमाए रोनाल्डो की सेल के थ्रू। वेल डन यार, बिग रिस्पेक्ट टू रियल। ओडिगार्ड यार टू पता है, आर्सेनल। मैं बताता हूँ ये चीज। पता है रियल मैड्रिड क्या करती है? रियल मैड्रिड ये करती है, जैसे अभी हमने देखा टाकेफूसा, मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा, कूबो, हाँ कूबो बोल देता हूँ। कूबो हमारा प्लेयर है, सही है, उसको हमने अभी लोन पे भेजा, ठीक है, लोन पे भेजा अब हमने उसको। तो देखो, मैं बताता हूँ कि उसके ना राइट्स लेके रखे हुए रियल मैड्रिड ने, जो भी बड़ी बड़ी जो क्लब्स, मतलब जो भी वो होती है ना, जो हमारे जो एकेडमी डेवलप प्लेयर्स जो होते हैं कुछ के, तो हम उनको बेच देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बेच के क्या करते हैं, उनके सेलिंग राइट्स अपने पास कुछ ना कुछ रखते हैं, या तो लोन्स पे बेचते हैं या सेलिंग राइट्स अपने पास रखते हैं, कि जैसे फ्यूचर में हम उसको वापसी बुला सकते हैं अपने पास, या तो कोई रिटर्न ऑप्शन रखते हैं, या कोई सेलिंग राइट्स रखते हैं कि आगे भाई 25-30% वो बंदा और आगे बढ़ता है तो उसके हमें मिले। तो यही चीज है टाकेफूसा कुबो के भी, उसका यही है कि अगर जाएगा भी तो उसके भी सेलिंग राइट्स हमारे पास रहेंगे। तो यही चीज है कि रियल मैड्रिड जैसा बिजनेस कोई खेल ही नहीं सकता। आई थिंक उससे एब्सोल्युटली यार, रियल ये तो भी एक तो अलग था, लेवल पे है। ओडिगार्ड टू आर्सेनल। 40 मिलियन में था आई बिलीव ओडेगार्ड टू आर्सेनल। 40 million. That player हम्म। even play in a single game. हाँ, सोसिएडाड में खेला था शायद लोन पे। दो, एक एक लोन था, एक आर्सेनल से लोन था, लाइक जनवरी वाला लोन था, देन आर्सेनल ने परमानेंट कर लिया। हम्म। The नहीं, Real आर्सेनल का has done परमानेंट a हो चुका lot, है। बट मेरे को लग रहा है कि वो हालैंड के लिए जाएंगे, शायद लेवेंडोस्की के बाद बार्सिलोना, लग रहा है, क्योंकि हालैंड को एटमॉस्फेयर अच्छा लगा। जब क्राउड अप्लॉज करती है, ओपोनेंट क्राउड, तो कंफर्म है वो वहीं जाने वाला है। unless it's someone never mind, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे। ओके ओके, डेफिनेटली। Okay, thank you थैंक so यू, much, थैंक यू श्री Abdullah भाई। Bhai, Football Creeks, to have me, and big up to Bilal Bhai as well. People do subscribe to both channels, and thank you so much to have me on, Bhai. Big pleasure. यस श्रेय भाई के चैनल को भी सब सब्सक्राइब करें, थैंक यू। यस, डेफिनेटली। और अबे, चलो अपन अपना आते, तू बता दे भाई। लेट्स स्टार्ट विद, तो कहाँ थे हम लोग? बोर्मा, आर्सेनल फुलहम पे बता दे, स्टार्ट करते, आर्सेनल फुलहम से स्टार्ट करते। यार आर्सेनल फुलहम, अभी मेरा मूड नहीं हो रहा है फुटबॉल में बात करने का, बिल्कुल अच्छा मेरा चल, क्रिकेट का मूड हो रहा है। चलो चल वो ठीक कर है लेते, जल्दी फिर। जल्दी 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 वो कर लेता हूँ। यार ये हाँ। आर्सेनल जीत रही है, 2-1 जीत रही है आर्सेनल, सही है। हम्म, लिवरपूल बॉर्नमouth का पता नहीं क्या होता है, बट मैं तो यही रेट करूंगा 2-0 टू लिवरपूल, लिवरपूल जीत जाएगी, ठीक है। हम्म, और ब्रैंडफोर्ड एवर्टन, जैसा कि श्रेय भाई ने बोला था कि भाई काफी रग्बी टाइप ऑफ गेम होगा, और मैं इससे अग्री करूंगा। दोनों टीम्स ऐसी हैं, उल्टी सीधी उल्टी खोपड़ियां टीम है, सही है। तो ब्रैंडफोर्ड और एवर्टन का मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ब्रैंडफोर्ड निकाल लेगी, अभी 2-1 निकाल लेगी। और एस्टन विला, वेस्ट हैम, नॉटिंघम फॉरेस्ट, टॉटनम, हाँ ये वाला बता दे। टॉटनम जीत रही है 1-0 2-0, क्योंकि इतना खास ये लोग खेलते नहीं है, मतलब एक दो गोल से ऊपर नहीं आने वाले इस गेम में, आई आई हाँ, डोंट थिंक सो। जीतेगी भी तो ऐसे ही जीतेगी। और चेल्सी लाइस्टर का मैंने तो प्रिडिक्शन कर दी, मैन सिटी और क्रिस्टल पैलेस, मैन सिटी टू विनिंग दिस वन। हाँ मैन सिटी विनिंग दिस वन 3-1, और जाहा गोल स्कोर मार देगा, कुछ ना कुछ ये लोग कर देंगे क्रिस्टल पैलेस वाले, और सिटी जीत जाएगी ये मैच। एंड यही है बस, प्रिडिक्शंस तो हो गई ना, आई गेस हो गई। हाँ चलो, ओके। लालीगा है अभी, मैच चालू है क्या कोई? नहीं नहीं। अच्छा, एशिया कप का स्केड्यूल देखते हैं कौन सा क्या है। एशिया कप यही है ना? हाँ। 2022। कल ही, ओ अभी यस, कल ही है मैच है, अरे बाप रे। कल है अबे ना आज का श्रीलंका मैच, अफगानिस्तान का। अबे ये देख, 28 अगस्त, अच्छा दो परसों है। 28 है, हाँ तो मैं सोचा कि कल ट्वेंटी परसों है सेवन बोल तो ट्वेंटी रहा एट है। हूँ। 28 है, 28 है। ना ओके ना कल, बाबा। इससे पहले क्या है? अच्छा कल श्रीलंका अफगानिस्तान है, ओके ओके। विन प्रोबेबिलिटी इतनी दी है श्रीलंका को? अच्छी खासी दे दी है श्रीलंका के पास यार, वो है ना अच्छे, इनका 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 एक अच्छा बैलेंस लाइनअप बन गया है। हाँ हाँ। श्रीलंका को देखो, राजा पाक्सा इनका हिटिंग कर देगा भाई आपको। और कौन है इनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, निसांका वगैरह हैं इनके पास। और हसारंगा तो भाई हमें पता है, हसारंगा तो आग मचा देगा भाई गेम के अंदर।
राशिद और नेक्स्ट। हसरंगा की टक्कर है इस जमाने में तो, लेग स्पिनर के उसमें, तो डेफिनेटली भाई यही लगता है मेरे को तो। और इंडिया पाकिस्तान भाई साहब यार क्या एक क्या सेकंड बोलूं रुक मैं। जा, लोग की स्क्वाड्स देख अबे। विन प्रोबेबिलिटी देख रहा है। ओके, केएल राहुल है, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, चलिए हम लोग का है। तुम लोग में कौन नहीं है? बुमराह नहीं है, वसीम इंजर्ड हो गया है, और वसीम इंजर्ड हो आसिफ गया है। अली, बाबर आजम, फकर जमान, हैदर अली के, इफ्तिखार, मोहम्मद हसन अली नवाज। वापसी आ गया है ना, हसन अली वापसी आ अरे गया है। आ गया। हाँ। ओके, रन, हसन अली। विराट कोहली भाई हाँ, साहब ये अच्छा, सेइंग ये हेलो, अच्छा। विराट कोहली इन द चैट, हेलो बॉयज, हेलो हसन अली, हेलो हेलो। राउफ अच्छा है, बैट्समैन है ना ये, मोस्टली ये बॉलर 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 भी है। बॉलर। और अरे एक्चुअली शाहीन अफरीदी नहीं है उसका, सबसे उसका। बड़ा वो मसला ही वो है उसका ये। नहीं तो हम लोग के इसमें भी तो वो नहीं है ना, क्या बोलते हैं इसका नाम, क्या, बुमराह नहीं है। बुमराह। हाँ तो इवन मैच हो गया, बट तुम लोग के इसमें एटलीस्ट बाबर आजम फॉर्म में है, हम लोग का विराट कोहली कौन से जमाने का आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, पता नहीं कब आएगा वो। आ जाएगा आ जाएगा, विराट इज लव ब्रदर, विराट इज लव। यस, डेफिनेटली, डेफिनेटली विराट इज लव। लेकिन मुझे ये प्लेयर भी बहुत ये अच्छा लगता है एक्चुअली, दीपक हुडा बॉलर भी है, बैट्समैन भी है, अच्छा हाँ। खासा इसका रेट भी है, बहुत फास्ट भी खेलता है। देखो रोहित शर्मा क्या किसको खिलाता है, स्काई है ना, स्काई है ना। हाँ स्काई है भाई। दिस गाय इज क्रेजी। खाली इसको क्यों लिया पता नहीं मेरे को, ये बहुत अजीब ही खेलता है, थोड़ी देर खेलता है फिर तो ये तुम लोग के बॉलर्स इसको परेशान करेंगे, श्रेयस अय्यर को। ये थोड़ा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग नहीं कर पाता है बैट्समैन थोड़ा, फिर भी लेट्स सी। मैं भी अपने 2-3 लोगों को बुलाऊंगा। ओके 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 ओके, मैं भी अपने 2-3 लोगों को बोल रहा हूँ, देखते हैं उन लोग आते नहीं आते, लेट्स सी। चल ठीक है, कल 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 करते, तेरे चैनल पे हम्म। करते, तेरे चैनल पे करते, मेरे चैनल पे ही करेंगे, मेरे चैनल कि पे ही तेरे करेंगे। चैनल पे अच्छे खासे आते हैं लोग। मेरे हाँ चैनल पे इन लोगों को बोल के रखो फिर भी नहीं आते। चल एनीवेज, करेंगे करेंगे। ये सब बातें इस पे नहीं बोलते हैं, ये करप्ट करना पड़ेगा।